So everyone can see my screen now? Yes, sir. Okay. So last time we were discussing this transmission of a rectangular pulse through an ideal low pass filter, and today I will do a little recap of what we did last time, and I will also introduce one more topic for today. So starting off where we stopped last time, and the ideal low pass filter has a frequency response given by the expression 1, which is e raised to power minus j omega t naught when omega frequency is less than omega c, okay, mod, and it's 0 all the other on the other frequencies. Okay, so this means that this low pass filter is truncating all the frequencies which are greater than omega c, both on a positive axis and a negative axis. Okay, its magnitude is 1, and it will cause a constant time delay to whatever signal that will be fed to it with minus t naught. Okay, since this frequency response is in frequency domain, we can take its inverse Fourier transform, and its inverse Fourier transform will give us its impulse response, okay, which is given as h of t. And when we take the impulse inverse Fourier transform of this expression 1, we get this expression 2, which is omega c by pi sinc into omega c by pi into t minus t naught. Okay, and just for the sake of clarification, I've also plotted this impulse response in the figure that you can see at the bottom by taking the value of omega c as 1 and taking the value of t naught as 0. Okay, so this is how a sink looks like. The main lobe of sink is where the major information is. The duration of main lobe is given by 2 pi by omega c. Its amplitude is given by omega c by pi. Since in this case omega c is 1, so its amplitude is 1 over pi, which is 0.318. Okay, so you only need to keep in mind the Fourier frequency response of ideal low pass filter and also its impulse response. Okay, if you have a question anywhere in the middle, please interrupt me. Anyone has question, or it's clear to everyone? सर ये अगेन कर देना, क्योंकि थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया वो, क्योंकि हमारी बायो की थी लैब, तो उसके बाद याद नहीं था कि आपकी आज क्लास है, तो इस वजह से। Okay, and so what I have told till now is that I have introduced two questions. The question one is frequency response of ideal low pass filter, and in the question you can see that as long as omega mod is less than omega c, the amplitude is 1 multiplied by e raised to power minus j omega t naught. Okay, we know that e raised to power minus j omega t naught is nothing but just a delay of minus t naught. Okay, and it has a magnitude of 0 as long as omega is greater than omega c. Okay, so this is the information of a low pass filter in frequency domain, and when we take its inverse Fourier transform, it will give us its impulse response, which is shown by the expression 2, which is the h of t is equal to omega c by pi sinc into omega c by pi multiplied by t minus t naught. And now both these expression 1 and 2 are related to each other by their like Fourier transform of an inverse Fourier transform of each other. Okay, I've also plotted this expression 2 for you at the bottom. Okay, and the sinc function by taking the value of omega c as 1 and making a value of t naught as equal to 0. If you take a value of t naught of any other value other than 0, what it will do, it will like shift this sinc to either right side or the left side depending on the value of t naught. Okay, um, the value of omega c will determine the height of this sinc and also the width of this main lobe of the sinc function. The width of the main lobe of sinc function is given by 2 pi by omega c. So if you have a bigger value for omega c, then the main lobe will be smaller. If you have a smaller value of omega c, then the main lobe will be bigger. Okay, and also as like the body of the main lobe gets shrink or it gets fatten up, its amplitude will move up and move down. Okay, so this information is only for the ideal low pass filter, how it looks like in a frequency domain and how it looks like in a time domain. Okay, so now I move to the next slide. Now you can see my next slide as well. Now we need to pass a rectangular pulse through this ideal low pass filter, which we have introduced in the last slide. Okay, in order to do this, we need to know how a rectangular pulse looks like. Okay, so a rectangular pulse is 1 as long as t mod is less than t naught by 2, and it is 0 as long as t mod is greater than t naught by 2. Okay, and for the sake of clarification, I've also plotted how this small x of t looks like. Okay, and its amplitude is 1,
as long as small t is less than t naught by 2 on positive axis, and also less than greater than minus t naught by 2 on the negative axis. Okay, everything clear till now? Yes, sir. जी sir. Okay, so what we need to do, we need to pass this x of t, which is a ideal rectangular pulse, through this ideal low pass filter, which we have introduced in a last slide. Okay, so in order to do so, I move to my next slide, which says that when you pass a rectangular pulse through a low pass filter, the output will be the convolution between this rectangular pulse and your low pass filter, okay, in time domain. So you need to know the time domain expression of your rectangular pulse, and also a time domain representation of your low pass filter. And fact of the matter is, we do know both of these expressions. We have introduced them in our previous slides. Okay, का mic on है. Okay, so the output will be the convolution of equation 2 and 3, and it is also can be given as the convolution between figure 1 and 2. Okay, the expression of convolution is y of t is equal to integral minus infinity till infinity x of tau into h of t minus tau. Okay, and then I put the values of x of t and h of t inside this expression, and I get this expression, which is in the middle of the slide. Y of t is equal to omega c by pi integral of minus t naught by 2 till plus t naught by 2 into sinc omega c into t minus t naught minus tau over omega c t minus t naught over tau into d tau. Okay, now from this point and onwards, there are multiple mathematical steps that I have, for the time being, discarded, or we are not interested in them. Okay, and what I'm interested in is the ultimate result that I get out of it. Okay, so the ultimate result of this calculation, if you put a values of t naught minus t naught by 2 and plus t naught, and then do this integration and put the limits, is that you get a y of t is equal to 1 of pi into bracket psi function with the argument of a minus psi function with the argument of b. Okay, and this function can be solved by using power series. I will not solve it. I will just show you how this y of t looks like at the end, and we are only interested of how this output looks like. We are not interested in this mathematical formulation for further timing. Okay, so there are 3 cases. Okay, everyone can see the slide. I have moved to the next slide, right? Yes, sir. जी जी आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है? जी बेटा की हुई है. ठीक है सर, बस सर यही पूछना. Okay, so the y of t, which is actually the output when we pass our rectangular pulse through an ideal low pass filter, is actually a convolution between an ideal low pass filter and a rectangular pulse is our output. And how does our output looks like? It actually depends upon our choice of omega c, and omega c is actually our cutoff frequency in the case of our ideal low pass filter, that till what frequency it will let our information pass through, and from which frequency point it will start truncating our input. Okay, so the first scenario is when omega c is larger than 2 pi by t naught, y of t is roughly similar to x of t, which is a rectangular pulse. However, y of t has a non-zero rise and fall, and y of t exhibits ringing at both leading and trailing edges. Okay, and whatever I have written over here in a description, I've also plotted at the bottom for you. Okay, you can also see the colors in the bottom picture, right? Or you cannot? Yes, sir. Okay, so the red color is the output, the blue color is the input. Okay, and we know that our input is a rectangular pulse, and we have done is that we have passed our rectangular pulse through an ideal low pass filter with a cutoff frequency of omega c. Okay, so what we get at the output is what you can see over here as a red color plot, which is output, and you can see that the red color line is not a rectangle, right? What does it look like? Can anyone tell me? Yes, sir. Rectangular नहीं है, मिलता जुलता है. किस तरह का है, मिलता जुलता किस तरह का है? कुछ कमेंट करेंगे आप इस पे? पीछे 3 ग्राफ्स बताए थे. 3 ग्लास ग्राफ जो थे 3 पीछे, हमने एक स्लाइड में पढ़े थे, लास्ट स्लाइड में. हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं में से पहला ग्राफ ही है. ठीक है जी. और जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि whenever you pass a rectangular pulse through an ideal low pass filter with a cutoff frequency of omega c, your output does not look like a rectangular pulse. Okay, it looks like this figure, but you can see over here in a red color. Okay, and the significant thing about this output is that it does not have
a zero rise and fall time. Like your rectangular pulse, it goes instantaneously in zero time from zero magnitude to one magnitude. Okay, your output does not do the same. Okay, it takes some time, like significant time, to get to the amplitude 1, and then it takes a significant time to come back from magnitude 1 to magnitude 0. Okay, and in addition to that, it also exhibits ringing at both leading and trailing edges. Like it has this certain downshoot from zero amplitude, and it also has certain upshoot from one magnitude, then it stays somewhere close to 1, and then it again comes back down to zero magnitude. Okay, so this figure is what you need to keep in mind. Okay, and this is only for the scenario when your omega c is larger than 2 pi by t naught. Okay, in this case I have taken as t naught as 1, so this is a figure for when your omega c is larger than 2 pi. Okay, so the bigger your omega c is then from your 2 pi, the more closer your output will be to rectangular pulse. However, it will never be equal to exactly as a rectangular pulse that you fed into your low pass filter, with the hope that you will get the same rectangular pulse at your output. Okay, so ज़हन में रखने वाली बात है, अगर आपकी ओमेगा सी जो है वो 2 पाई बाय टी नॉट से जितनी ज्यादा बड़ी होगी, आपकी आउटपुट उतनी ही रेक्टेंगुलर पल्स से मिलती जुलती होगी. ओके सर बट पीछे जो हमने पढ़ा था उसका एम्पलीट्यूड 0.318 था, इधर एम्पलीट्यूड 1 कैसे? आप इस स्लाइड की बात करिए. ओके यस जी सर. मैडम, ये आपके आइडियल लो पास फिल्टर का इंपल्स रिस्पांस है, जिसमें से आपकी रेक्टेंगुलर पल्स गुजर रही है, राइट? ये एच ऑफ टी की प्लॉट है, वो वाई ऑफ टी की बात हो रही है. वहां पे दोनों में रिलेशन क्या है? सर वो कन्वोल्यूशन होके आ रहा है सर, ये वो नहीं है. जी बिल्कुल, एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी की कन्वोल्यूशन होगी तो हमें वाई ऑफ टी मिलेगा. तो वो ये जो आउटपुट इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं, जो रेड और ब्लू कलर में मैं शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली वाई ऑफ टी है. ठीक है, ठीक है. ओके, तो ज़हन में रखने वाली बात ये है कि आपकी ओमेगा सी 2 पाई बाय टी नॉट से जितनी ज्यादा बड़ी होगी, आपकी आउटपुट उतनी ही मिलती जुलती होगी आपके इनपुट से, जो कि एक रेक्टेंगुलर पल्स है. जी आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने बताया ये लार्जर देन 2 पाई बाय ये टी नॉट, इसके आगे वाई टी इज रफली एज एक्स ऑफ टी, ये इससे आगे लाइन समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है. मैं पढ़ देता हूं. व्हेन ओमेगा c is larger than 2 pi by t naught, y of t is roughly similar to x of t. Okay, which was a rectangular pulse. Our x of t was a rectangular pulse, right? हमने जो इनपुट दी थी वो एक रेक्टेंगुलर पल्स ही थी, माइनस टी नॉट बाय 2 से प्लस टी नॉट बाय 2 तक. ओके, x of t which was a rectangular pulse, however y of t has a non-zero rise and fall, and y of t exhibits ringing at both leading and trailing edges. ठीक है, बेसिकली ये जो आपकी आउटपुट की जो फिगर बनी हुई है, इसका जो प्रोफाइल है वही मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है. ओके, एक तो इसे 1 एम्पलीट्यूड गेन करने के लिए लेने के लिए इंस्टेंटेनियस टाइम में ये काम नहीं करेगा, इसे सिग्निफिकेंट टाइम चाहिए. आप देख सकते हैं ये इमीडिएटली 1 नहीं हो रही, ये कुछ टाइम ले रही है 1 होने में. उसके बाद जब एक दफा ये 1 के आसपास पहुंच गई, उसके बाद ये कुछ टाइम ले रही है दोबारा 0 होने के लिए, एकदम 0 नहीं हो रही. ठीक है, और दूसरा बोथ लीडिंग और ट्रेलिंग एजेस पे ये रिंगिंग इफेक्ट भी शो कर रहा है. मतलब आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा डाउन शूट भी है उसमें 0 में, और थोड़ा सा वो 1 से बड़ा भी हो रहा है, राइट? यस और सर एक और है कि अगर वहाँ पे 0.318 था तो एम्पलीट्यूड, और वो हमारे पास था एच ऑफ टी है. ठीक है, अगर हमारे पास एच ऑफ टी का एम्पलीट्यूड अगर 1 से ज़्यादा होता है, तो वो अगर उसमें से अगर रेक्टेंगुलर पल्स हम पास करते हैं, तो फिर उसमें एम्पलीट्यूड कहाँ पे जाएगा, मतलब उसका आइडिया में कैसे हो? मैं वही आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ. अच्छा, मुझे बताएं, ये जो एच ऑफ टी जो हमने इम्पल्स रिस्पांस प्लॉट किया है, इसका मैग्नीट्यूड 0.318 है. ओके, क्यों? क्योंकि हमने ओमेगा सी को 1 लिया हुआ है. ओमेगा सी की कोई वैल्यू बताएं मुझे इस वक्त, कोई भी वैल्यू. 3 आपने कहा ओमेगा सी 3. जस्ट अ सेकंड. अब 3 ओमेगा सी के लिए इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? ये होगा 3/पाई. ठीक है, 3/पाई कितना होता है? किसी के पास कैलकुलेटर है कोई इतना काबिल आदमी क्लास में? सर 0.95. 0.95. ओके, हम लिख लेते हैं कि 3 ओमेगा सी के लिए, मैं अपने पास लिख लूं जरा. 4 ओमेगा सी इज इक्वल टू 3, एम्पलीट्यूड है 0.95. ओके,
अच्छा, अब हम वापस आते हैं अगली आउटपुट पे जहां पे हम अभी बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कहा हुआ इफ ओमेगा सी इज लार्जर देन 2 पाई बाय टी नॉट। ओके, अब आपने ओमेगा सी लिया है 3, ठीक है, क्या ये 2 पाई बाय टी नॉट से बड़ा है अगर मैं टी नॉट को 1 ले लूं तो? छोटा क्या है। कह रहे हैं? बड़ा है छोटा है? 2 पाई बाय 2 पर कितना होगा? ये होगा 6.28, राइट? 6.28 हाँ, यस तो सर। 3 जो है ये 6.28 से बड़ा नहीं है, इससे छोटा है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये सिनेरियो इस पे काम नहीं करेगा, इस पे 6 सिनेरियो आगे वाला काम करेगा। आप ओमेगा सी को थोड़ा और बड़ा लें, हम ओमेगा सी की वैल्यू ले लेते हैं 10, ठीक है। 10 ओमेगा सी के लिए मैडम मुझे बताएं कि एम्पलीट्यूड कितना बनेगा हमारे इंपल्स रिस्पांस का? सर 3.18। 3.18। ओके, तो जो हमारा इंपल्स रिस्पांस है उसका जो मेन लोब है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा और थोड़ा सा ऊंचा भी हो जाएगा, और जब वो ऊंचा होगा तो उसका एम्पलीट्यूड मैडम ने बताया 3.18 होगा। ओके, अब वापस इसी सिनेरियो पे आते हैं जो स्लाइड यहाँ पे खुली हुई है, जो बेसिकली आपको आउटपुट बता रही है। ओके, ये स्लाइड क्या कहती है कि अगर आपका ओमेगा सी इज लार्जर देन 2 पाई बाय टी नॉट, जो कि मैं देख भी लेता हूँ, ये 10 है और 2 पाई होगा 6.28। ओके, तो अब जो मेरा 10 है वो 6.28 से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपने ओमेगा सी 10 लिया है तो मेरी जो आउटपुट होगी वो रफली इनपुट के सिमिलर होगी। क्लियर होगी बात आपको? सर ये नहीं समझ आ रही कि आप उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं? 2 पाई हम बाय इसका एम्पलीट्यूड, ये जो अभी आपके सामने एच ऑफ टी प्लॉट हुआ हुआ है जी सिंक फंक्शन, इसका एम्पलीट्यूड किस तरह निकलेगा? इसका सिंक का एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे? 0.318। हाँ, कैसे निकला है, किस एक्सप्रेशन से निकला है वो पूछ रहा हूँ मैं। सर ये ऊपर एच ऑफ टी वाले से निकला हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे ओमेगा सी बाय ओमेगा पाई। सी की वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू पुट करें, डिवाइड करके लिख दें यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड। ये कौन सी मुश्किल बात है? पाई को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो कांस्टेंट है। ओमेगा सी को चेंज करेंगे, राइट? तो ठीक टी है, तो नॉट आप कांस्टेंट है हमारे पास। हाँ, टी नॉट कोई कांस्टेंट है, टी नॉट सिर्फ ये बता रहा है कि आपका सिंक पड़ा कहाँ पे हुआ है। इस वक्त चूंकि टी नॉट 0 है तो आपका सिंक एग्जैक्टली ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। अगर आप टी नॉट की वैल्यू कोई प्लस माइनस वैल्यू लेंगे तो ये अपने ओरिजिन से लेफ्ट और राइट पे शिफ्ट करेगा, लेकिन शेप में फर्क नहीं पड़ेगा इसकी। ओके, शेप में अगर कोई चीज फर्क डाल रही है तो वो सिर्फ आपकी ओमेगा सी डाल रही है, और वो भी क्या कर रही है कि आपके सिर्फ जो मेन लोब है उसे पतला या मोटा कर रही है, ठीक है। अगर वो मेन लोब को पतला करेगी तो इसका आपका मतलब है आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर वो मेन लोब को मोटा करिए तो इसका है कि आपका मेन एम्पलीट्यूड नीचे आ रहा है। लेकिन ये हमेशा एक सिंक ही रहेगा, बेशक पतला हो या मोटा हो, और हमेशा किसी टी नॉट के मतलब पॉइंट पे ही रहेगा, उसी पे शिफ्ट होके पड़ा रहेगा जो टी नॉट की वैल्यू है। अगर टी नॉट 0 है तो ओरिजिन पे पड़ा रहेगा, ठीक है। यस सर, ठीक है, समझ आया। तो वापस हम आते हैं अपनी इसी स्लाइड पे। तो इस स्लाइड ने हमें सिर्फ ये बताया कि हम जब एक रेक्टेंगुलर पल्स को आइडियल लो पास फिल्टर से गुजारते हैं तो जो आउटपुट होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा सी पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अगर आपका ओमेगा सी सफिशिएंटली लार्ज है 2 पाई बाय टी नॉट से, तो आपकी आउटपुट समवट सिमिलर होगी जो आपने इनपुट दी थी, जो कि एक रेक्टेंगुलर पल्स है। ओके यस सर। ओके, चलें आगे। किसी के पास और तो कोई क्वेश्चन नहीं? एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर जो आपने अभी वो स्लाइड खोली थी पीछे वाली, वो दोबारा उस पे जाइएगा। आ गया, ये लें। ये वाली सर, मैंने इससे पूछना था कि अभी आप बता रहे थे कि जो हम लोग ओमेगा सी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं उससे जस्ट आपकी एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, यहाँ वो ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी। ये जो यहाँ पे 2 पाई ओवर ओमेगा सी है, ये जस्ट आपकी नीचे ये वैल्यू है, सिर्फ इसको बताता है, मतलब जहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है। हाँ, ये जो 2 ओरिजिन पाई पे ओवर है ओमेगा सी है ना मैडम, बेसिकली अगर आप नीचे देखें मैंने एरो भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये 2 पाई जी बाय सर। ओमेगा सी ये बता रहा है कि सिंक बेसिकली मोटा कितना है। ओके जी, मतलब उसकी ब्रॉडनेस को के है हाँ, कि वो ब्रॉड है कि एग्जैक्टली नहीं है, जस्ट वो बता रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं ठीक ओमेगा है, सी की वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ तो इसका मतलब ये कि पूरे का पूरा 2 पाई बाय कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अगर ये कम जी, होगा तो इसका मतलब है कि जो ऊपर 0.318 वाला एम्पलीट्यूड है वो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो ऊपर ओमेगा चल। सी बाय पाई से आ रहा है। ओके, जी ठीक है, जी तो ये ठीक है जितना सर। पतला होगा एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा, जितना मोटा होगा एम्पलीट्यूड नीचे आएगा। जी ठीक है। ओके, अच्छा, ये स्लाइड क्लियर हो गई कि आउटपुट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा सी पे डिपेंड कर रही है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट जो है वो इनपुट के तरह की ही हो, मतलब मिलती जुलती बहुत ज्यादा, तो कोशिश करें कि जो आपकी ओमेगा सी है वो 2 पाई बाय टी नॉट से काफी बड़ी रखें आप। क्लियर होगी बात ये? यस सर। यस सर। Okay, that's the first scenario. Now we come to the second scenario. Second scenario is, what if your omega c exactly equal to 2 pi by t naught? ठीक है, then y of t is recognizable as a pulse with significant rise and fall time. Okay, in this case I have also shown you again
your input is same, but you were feeding to your ideal low pass filter, which is a rectangular pulse. Now your output does not look like a rectangular pulse, okay? Rather it looks like a pulse, okay? A pulse जिसका एक वो somewhat like a peak. It starts like following a certain slope, goes to the peak and then comes back down. Okay, so my question to you is, ये output input से ज़्यादा मिलती जुलती है या पिछले सिनेरियो वाली output input से ज़्यादा मिलती जुलती थी? पिछले वाली पिछली वाली. Okay, so if you want to ensure that your output remains similar to your input, then you have to ensure that your filter's cutoff frequency is way larger than 2 pi by t naught. Okay. यस तो सर सेकंड सिनेरियो, अगर ओमेगा सी 2 पाई बाय टी नॉट के बराबर है तो आपको पल्स नहीं मिलेगी, मतलब रेक्टेंगुलर पल्स नहीं मिलेगी, आउटपुट पे एक पल्स मिल जाएगी, ओके, जिसका सिग्निफिकेंट राइज एंड फॉल टाइम होगा और उसका एम्पलीट्यूड 1 से थोड़ा सा बढ़ भी सकता है और ड्यूरेशन भी थोड़ी सी बढ़ सकती है, और ये दोनों चीजें जो हैं ये ट्रांसमिशन में डिस्टॉर्शन कॉज करती हैं. ओके, अच्छा, पहला सिनेरियो हो गया जब ओमेगा सी 2 पाई बाय टी नॉट से बहुत बड़ा है. दूसरा सिनेरियो है जब ओमेगा सी एग्जैक्टली 2 पाई बाय टी नॉट के बराबर है. अब एक थर्ड सिनेरियो भी होना चाहिए. ओके, व्हाट इफ कि आपका ओमेगा सी जो है वो 2 पाई बाय टी नॉट से छोटा है, राइट? यस सर Okay, so in this case y of t is grossly distorted version of x of t and I have plotted it over here as well. Okay, आपकी जो ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको -0.5 से +0.5 के बीच में रहना चाहिए था, वो -0.5 से बहुत पहले स्टार्ट हो गई है और +0.5 से बहुत बाद में जाकर खत्म हो रही है. किसी बंदे का माई कौन है? Okay. And also your amplitude has truncated significantly when in comparison to your input, which had amplitude of 1. Okay, so three scenarios which you need to keep in mind whenever you pass a rectangular pulse through an ideal low pass filter. Okay, the output of a low pass filter depends upon your choice of cutoff frequency. Okay, if your cutoff frequency is very large than 2 pi by t naught, then your output will look like somewhat similar to your input. Okay, if your cutoff frequency is exactly equal to 2 pi by t naught, then your output will not look like a rectangular pulse, rather it will look like a pulse with a significant rise and fall time. Okay, and last but not the least, if your cutoff frequency is less than 2 pi by t naught, then your output will be a distorted version of your input. It will not resemble a pulse or a rectangular pulse. It will have a significantly truncated amplitude in comparison to your input, and its duration will also be extended way more than 1, which was originally the case in the case of your input rectangular pulse. Okay, so अगर किसी के पास यहाँ तक लेके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे भी पूछ सकता है. सर ये तीनों जो आपने बताए हैं ये मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, ये तीनों जो मतलब इक्वल होगा, लेस होगा या उससे ग्रेटर होगा, तो मतलब यही 3 सिनेरियो हो सकते हैं, इन तीनों के अलावा भी कोई सिनेरियो हो सकता है, तो आप मुझे बताएं. नहीं सर, मतलब पल्स बिल्कुल सेम यही आएगी जो आपने बताई हैं तीनों. मतलब अगर कोई भी हमें ये सवाल आ जाए तो हम सीधा यही पल्स बना के तो आपको दे दें. एग्जैक्टली मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अगर आपने ये इंश्योर करना है कि एक रेक्टेंगुलर पल्स जो है वो आइडियल लो पास फिल्टर से गुजर जाए और अपनी शेप रिटेन रखे, तो ओमेगा सी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए ओमेगा सी आपके ख्याल से? सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 2 पाई बाय टी नॉट. जितनी 2 पाई बाय टी नॉट से बड़ी होगी उतनी ही आपकी आउटपुट इनपुट से मिलती जुलती होगी. ठीक है, लास्ट मार्जिन आप जी सर इसकी भी कोई लिमिट है कि मतलब जितनी मर्जी बड़ी होती जाए इससे फर्क नहीं पड़ता? अपने पैसे हैं, जितने मर्जी बड़ी करते जाएं आप. पैसे ज्यादा लगते जाएंगे मतलब? हाँ बिल्कुल, आपका सिस्टम कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, वो आपकी मर्जी है. ये तो आप खुद भी पता है कि आप किसी भी चीज में जितना गुड़ डालेंगे वो उतनी मीठी होती जाएगी. अब कितना ज्यादा गुड़ डालना है इसकी कोई लिमिट तो नहीं है. शुगर मिल की मालिक हैं तो पूरा गुड़ डाल दें आप. ओके जी सर, क्लियर है यहाँ तक? मैं आगे चलूं फिर इस पॉइंट से? यस सर. अच्छा, अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है आज का वो है डिजाइन ऑफ फिल्टर्स. ओके, अभी हमने देखा कि बेसिकली इन प्रीवियस जो टॉपिक हमने कवर किया था, वी सॉ ओवर देयर दैट आवर low pass filter was ideal. Okay, we developed its frequency response and we also developed its impulse response and a mathematical expression for both. Okay, and also our input was ideal. Okay, it was an ideal rectangular pulse which was instantaneously going from 0 to 1,
constant one for the whole duration of time, and then instantaneously coming back from 1 to 0 at t0 by 2. Okay, and despite having all these things as ideal, we still could not get a ideal rectangular pulse at the output. ऐसा ही है? Yes, sir. So we saw in the last section that an ideal low pass filter is non-implementable as it does not give the required output. ठीक है, मतलब हमें जो required output चाहिए थी कि जो हमने रेक्टेंगुलर पल्स इनपुट पे दिया है वही रेक्टेंगुलर पल्स हमें आउटपुट पे मिल जाए, हमारे उस आइडियल लो पास फिल्टर ने वो काम तो नहीं किया. ओके, इसका मतलब है कि वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, डिस्पाइट बीइंग कि हमने बिल्कुल आइडियली मैथमेटिकली सारी एक्सप्रेशन ड्राइव की थी और मैथमेटिकली मतलब उसको कन्वॉल्व कराया था. ओके, सो अ प्रूडेंट अप्रोच इज टू टॉलरेट एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन by permitting prescribed deviations from ideal conditions. Okay, अच्छा, अब आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं? बेसिकली जो लो पास फिल्टर है, अगर आप लोगों के पास पेन एंड पेपर है तो बेसिकली लो पास फिल्टर का काम क्या होता है कि आप एक फ्रीक्वेंसी चूज कर लेते हैं ओमेगा सी, राइट, जो कि आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है. ओके, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिस तरह मैडम ने कहा था, आपके दिल करते हैं आप बड़ी ले लें, आपका दिल करता है आप छोटी ले लें. ओके, आपके लो पास फिल्टर का काम ये होता है कि जब तक आपके फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स जो हैं वो ओमेगा सी से कम हैं, वो उन्हें बगैर किसी अटेन्युएशन के पास कर दे, और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी तक पहुंची है, फ्रॉम दैट पॉइंट एंड ऑनवर्ड्स आपकी इनपुट को बिल्कुल ट्रंकेट कर दे जीरो पे, राइट. यही लो पास फिल्टर का काम होता है. यस सर. ओके, तो हम क्या करते हैं कि रादर देन हम सारी जिंदगी आइडियल की तलाश में गुजार दें, ठीक है, हम एक समवट रियलाइजेबल फिल्टर डिजाइन करते हैं. ओके, और उसे हमने फ्रीडम क्या दिया है? उसे हमने फ्रीडम ये दिया है कि जब तक ओमेगा सी, अच्छा एक टर्म है ओमेगा सी, अब मैं दो टर्म्स मजीद इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. एक है ओमेगा पी, ओमेगा पी का मतलब है पास बैंड फ्रीक्वेंसी. ओके, और एक है ओमेगा Yes, एस, sir. इसे मैं कह रहा हूं स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी. सर टॉप बैंड वाली कौन सी है? स्टॉप बैंड वाली मैम ओमेगा एस, ओमेगा लेके नीचे छोटा सा एस लगा दें आप. अच्छा, ये जो मेरी ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बेसिकली ओमेगा पी और ओमेगा एस के बीच में है कहीं पे. सर कौन सी वाली है, कोई बात था? आपकी जो ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो इससे पहले हम पढ़ा करते थे आइडियल लो पास फिल्टर के केस में, वो बेसिकली ओमेगा पी और ओमेगा एस के बिल्कुल दरमियान में है. ओके, उससे पीछे एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा पी और उससे आगे एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एस. अभी ओमेगा पी और ओमेगा एस का करेंगे, मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ. ठीक है, अच्छा, अब इसी स्लाइड पे जो मैंने खोली हुई है, मैं पहला सिनेरियो ले लेता हूँ. ठीक है, हमने खुद अभी आप लोगों ने मुझे कुछ देर पहले कहा कि जो आइडियल लो पास फिल्टर होगा वो ओमेगा सी से पीछे पीछे हर फ्रीक्वेंसी को बगैर किसी एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन के पास कर देगा, और जब ओमेगा सी से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उसके बाद 100% डिस्टॉर्शन करेगा, बिल्कुल जीरो एम्पलीट्यूड आगे जाने देगा. ओके, अच्छा, अब जो एक रियलाइजेबल फिल्टर है उसके केस में मैं पहला फ्रीडम दे रहा हूं अपने फिल्टर को कि इनसाइड अ पास बैंड मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ फिल्टर शुड लाई बिटवीन 1 and 1 माइनस इप्सिलॉन. ओके, मैं कहता हूं ओके, ओमेगा सी से पीछे मैं एक फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं ओमेगा पी, जो कि आपके पास सबसे बॉटम वाले प्लॉट में शो भी हो रही है, जिसे मैं पास बैंड फ्रीक्वेंसी कह रहता हूं. ठीक है, कि इस फ्रीक्वेंसी से पीछे पीछे हर चीज जो है वो पास होनी चाहिए. ओके, अच्छा, एक तो वो पास भी हो और दूसरा जरूरी नहीं कि उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल 1 ही रहे. ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में, जो कि नीचे आपके पास ग्राफ से शो भी हो रहा है. ठीक है, कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में रहेगा, मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, मिनिमम एप्सिलॉन तक जा सकता है. ओके, अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 0 ले लेंगे तो इसका मतलब है कि हम उसके एम्पलीट्यूड को वेरी करेगा कोई मार्जिन नहीं दे रहे. हम एप्सिलॉन को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो मार्जिन जो हम डेविएशन का दे सकते हैं उस एम्पलीट्यूड में वो बढ़ता जाएगा. ओके, तो आपके ख्याल से एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल. जितनी छोटी होगी उतना ही हमारा जो आउटपुट रिस्पॉन्स होगा वो 1 से मिलता जुलता होगा. ओके, यस सर. सर अगर हम इसको फर्ज करें 1 ही दे देते हैं तो वो 0 हो जाएगा, मतलब जो बिल्कुल. अगर आपने एप्सिलॉन को बिल्कुल 1 ही कर दिया तो ये आपका लो पास फिल्टर आइडियल जो कुछ देर पहले हम पढ़े थे वही बन गया है. यस.
ठीक है। सर अभी ये लेकिन सिंपल गुजर रही है पे जो फ्रीक्वेंसी है जो दरमियान में ये सिंपल वैसे दरमियान में सिर्फ मैंने फॉर द सेक ऑफ मतलब प्लॉटिंग वो बीच में लाइन बनाई है। आप कोई भी इसमें प्रोफाइल हो सकती है एम्पलीट्यूड की। कंडीशन सिर्फ ये है कि जो एम्पलीट्यूड की प्रोफाइल है वो मैक्सिमम 1 तक पहुंचनी चाहिए और मिनिमम एप्सिलॉन के बीच में रहनी चाहिए। ओके, बीच में कोई भी फिगर बना दें आप, आपका दिल करे तो, जो मैंने एच ऑफ जे ओमेगा मॉड की बनाई हुई है। ओके ठीक है। साथ मैंने इसकी एक्सप्रेशन में लिख दिया क्या जो आपका एच ऑफ जे ओमेगा मॉड है वो 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और 1 से छोटा है। बेसिकली 1 यहाँ पे मिसिंग है तो आप एक छोटा सा 1 लगा लें यहाँ पे। ओके मैं दोबारा बढ़ते रहा। 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एच ऑफ जे ओमेगा मॉड व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, और ये सब कुछ हो रहा है फॉर फ्रीक्वेंसीज जब तक आपकी ओमेगा जो है वो ओमेगा पी से छोटी है या इसके बराबर है। और ओमेगा पी हमारी एक पास बैंड फ्रीक्वेंसी है, वो नीचे मैं शो भी कर रहा हूँ ओमेगा एक्सिस पे। ओके यस सर। तो एक तो मैंने अपने प्रैक्टिकल फिल्टर को पहला फ्रीडम ये दिया कि एम्पलीट्यूड बेशक 1 ना हो, 1 और एप्सिलॉन के बीच में वेरी करता रहे, मुझे काबिल कबूल है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जो मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू है। और ये काम तब तक होता रहे जब तक कि पास बैंड फ्रीक्वेंसी नहीं आ गई जो कि ओमेगा पी नहीं है। ओके अच्छा, अब मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। इस स्लाइड को लेकर किसी के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है इस वक्त? नो सर। ओके, हम अगली स्लाइड पे आते हैं। ओके अच्छा, अब मैं एक और ओमेगा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो कि ओमेगा एस है, जो कि स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी। ओके, जिसके बारे में हमारा ख्याल ये था कि इस फ्रीक्वेंसीज में कोई भी एम्पलीट्यूड पास नहीं होना चाहिए। ओके, आइडियली इस केस में एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो होना चाहिए, जो कि आइडियल लो पास फिल्टर के केस में था भी, हमने कुछ देर पहले देखा है। ओके, अब दूसरा जो फ्रीडम मैं अपने फिल्टर को दे रहा हूं वो ये कि इनसाइड स्टॉप बैंड द मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ अ फिल्टर शुड नॉट एक्सीड सिग्मा। ओके, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं सिग्मा। ठीक है, और मैं कहता हूं कि मेरा जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है जब तक वो ओमेगा एस से बड़ा है उसे आइडियली तो जीरो होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो जीरो नहीं हो सकता तो मैं उसे ये फ्रीडम देता हूं कि कोई बहुत थोड़ी वैल्यू रहे लेकिन वो सिग्मा से छोटी छोटी रहे। क्लियर? नहीं सर नहीं यस सर। जी क्या चीज दोबारा क्लियर नहीं है? सर एक बार दोबारा कर देना जी मैं दोबारा बताता हूँ। ओके, जो पिछला सिनेरियो था वो हमने पास बैंड फ्रीक्वेंसी के केस में देखा था। ठीक है, कि जब हम चाहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसीज पास हो, ठीक है पास हो जाएं, एम्पलीट्यूड बेशक एग्जैक्टली 1 ना रहे, उसमें थोड़ी सी डिस्टोर्शन आ जाए, लेकिन वो डिस्टोर्शन 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में हो। ओके, अब हम ये स्टॉप बैंड वाले केस में आ गए हैं। ठीक है, जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के आगे वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई उसके बाद एक स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी है जहां पे हमने इंश्योर करना है कि आपको इन्फॉर्मेशन आगे ना जाए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आइडियली साली जीरो होनी चाहिए थी, पहले हमारे आइडियल केस में जीरो ही थी यहाँ पे। ओके, लेकिन चूंकि जीरो नहीं हो सकती तो हम यहाँ पे दूसरा फ्रीडम दे रहे हैं अपने रियलाइजेबल फिल्टर को कि ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब तक वो उसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो बहुत छोटा है, सिग्मा से कम है, जो कि यहाँ पे शो भी हो रहा है, जैसे वो मेगा एस से बड़ा है, अगर वो सिग्मा से छोटा तो हमारे लिए काबिल कबूल है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो पिछले मैं फ्रीडम दे रहा था 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0 और सिग्मा के बीच में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिग्मा छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए? सिग्मा बड़ा होगा जाहिर बात है। बड़ा होना चाहिए। क्यों मैडम, सिग्मा को बड़ा क्यों होना चाहिए? सब बड़ा होगा तो एच ऑफ जे ओमेगा उससे छोटा होगा ना। अच्छा, बेसिकली ये एच ऑफ जे ओमेगा जो है वो आपका मैग्नीट्यूड रिस्पांस है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एच ऑफ जे ओमेगा पे कंडीशन लगाई है कि ये वो फ्रीक्वेंसीज है ओमेगा मॉड की जो स्टॉप बैंड में है, जो कि ओमेगा एस से बड़ी हैं। हमारा रीजन हाइपोथेसिस ये था कि स्टॉप बैंड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो सिग्मा को छोटा होना चाहिए आपका। आइडियल अगर सिग्मा 0 होगा तो एग्जैक्टली वही केस बन जाएगा जो आइडियल लो पास फिल्टर था पहले, लेकिन चूंकि वो आइडियल है और आइडियल लो पास फिल्टर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता तो हमने थोड़ा सा फ्रीडम दिया उसको वहां पे कि ठीक है, 0 ना हो, सिग्मा से छोटा रहे, 0 और सिग्मा के बीच में हमें काबिल कबूल है, लेकिन इस लिमिट में रहेगा तो हमारे लिए ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन अगेन है कि सिग्मा को बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए सर। किससे? छोटा होना चाहिए। छोटा होना छोटा चाहिए। होना चाहिए। छोटा क्यों होगा सर, नहीं समझ आ रही है क्या है? जब मैं कैसे मजीद एक्सप्लेन करूं, बाकी सबको तो आ गई है। ये आपकी स्टॉप बैंड वो प्रोफाइल है, यहाँ पे आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ना जाए, वो ट्रंकेट हो जाए। तो सिग्मा क्यों बड़ा होगा, सिग्मा छोटा होगा। नीचे प्लॉट में वो शो भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा तो एक हमने पिछली स्लाइड में ये डिसाइड किया था कि हमारा एप्सिलॉन भी छोटा होना चाहिए, और अब इस स्लाइड में हमने देखा कि हमारा सिग्मा भी छोटा होना चाहिए। और ये जो मैंने प्रोफाइल नीचे बनाई है, ये बेसिकली ये स्लाइड पे जो एक्सप्रेशन शो हो रही है मैंने उसी को नीचे प्लॉट किया है कि आपका एच ऑफ जे ओमेगा मॉड
जो है वो सिग्मा से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। उस केस में जब आपकी ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा एस, और हमारी जो ओमेगा एस है वो स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी है। ओके अच्छा, अब ये जो मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए हैं, अब बेसिकली मैं इनको कंबाइन कर रहा हूं अपनी इस स्लाइड में। ओके बेसिकली द ट्रांजिशन बैंडविड्थ एक वो बैंडविड्थ है जो ओमेगा पी और ओमेगा एस के बीच में होती है। ओके अगर आपकी ओमेगा एस ओमेगा पी के बराबर है तो बिल्कुल आपके पास कोई ट्रांजिशन बैंडविड्थ नहीं है। उस केस में आपकी ओमेगा एस इज इक्वल टू ओमेगा पी इज इक्वल टू ओमेगा सी, आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज तीनों की तीनों सेम है। ओके लेकिन यूजुअली हमारे पास जो ओमेगा सी होती है वो ओमेगा पी और ओमेगा एस के बीच में होती है। हम कहते हैं कि ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है फिल्टर का, उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो 1 से 0 आने में जो टाइम लेता है बेसिकली, या जो फ्रीक्वेंसी में से देर लग रही है थोड़ी सी, उस टाइम को या उस फ्रीक्वेंसी बैंड को हम ट्रांजिशन बैंडविड्थ कहते हैं। ओके वो टाइम जो पास बैंड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड में आने में लगेगा। ये बेसिकली जो सबसे बॉटम पे प्लॉट है ना राइट साइड पे, वो सबको शो हो रहा है यहाँ पे? यस सर। ओके बेसिकली यहाँ पे मैंने वही जो आइडियल फिल्टर था, अब उसको मैंने रियल फिल्टर की फॉर्म में आपको शो किया। ओके कि जब तक आपकी जो ओमेगा है वो ओमेगा पी से छोटी है, आपका जो एम्पलीट्यूड रिस्पांस है वो 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में वेरी कर रहा है। एग्री? हमने पहले सिनेरियो में यही देखा था। ओके यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमारी ओमेगा जो है वो ओमेगा एस से बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि स्टॉप बैंड डोमेन है, तो अब मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो सिग्मा से छोटा रहना चाहिए। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे जो प्लॉट है इसके बॉटम में। ओके कि स्टॉप बैंड में उसका एम्पलीट्यूड जो है वो सिग्मा से छोटा ही है। ओके हाँ, ओमेगा पी और ओमेगा एस के बीच में जो उसका एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली 1 माइनस सिग्मा को आपने इस 1 माइनस एप्सिलॉन को आपने सिग्मा से ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन में। ओके अब मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, मुझे बताएं ओमेगा पी और ओमेगा एस के बीच में जो फर्क है ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम, बिल्कुल। ये जितना कम होगा उतना ही जल्दी आपकी स्टॉप पास बैंड से स्टॉप बैंड में आ जाएंगे, और यही चाहते भी हैं हम अपने फिल्टर से। आसान बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है? यस सर। यस सर। तो हम जो भी फिल्टर डिजाइन किया करेंगे, जो कि हम करेंगे प्रॉब्लली शायद आज के लेक्चर में या डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम कुछ सिग्मा कुछ एप्सिलॉन डिफाइन करेंगे। ठीक है, कुछ ओमेगा पी कुछ ओमेगा एस डिफाइन करेंगे, और उन सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा पी और ओमेगा एस को लेके अपना फिल्टर डिजाइन किया करेंगे। उसके बाद देखेंगे भी कि इस फिल्टर में से जब हम इनपुट गुजार रहे हैं तो जो आउटपुट आ रही है क्या वो ऐसी ही फिगर बन रही है जिस तरह की हमने एक्सपेक्ट की थी इससे। ओके तो प्लीज गेट योरसेल्फ अकस्टम्ड विद के ओमेगा पी क्या है, ओमेगा एस क्या है, सिग्मा क्या है, एप्सिलॉन क्या है। जी जी सर अगर उसमें हम डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो इसका एक नुकसान होगा कि उसमें डिस्टॉर्शन आएगी फिल्टर के अंदर। नहीं, इससे नुकसान ये होगा कि आपकी पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में जो फॉल टाइम है वो बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं वो कम से कम हो। ओके हम चाहते हैं कि हमारा जो एम्पलीट्यूड 1 है वो इंस्टेंटेनियसली 0 पे आ जाए। ऐसा ही होना चाहिए ना, जो आइडियल रेक्टेंगुलर पल्स है उसके केस में ऐसा ही होता है, राइट? और जो आइडियल लो पास फिल्टर था वो भी ऐसा ही करता था कि जैसे ही आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती थी वो आपके मैग्नीट्यूड को 1 से 0 कर दिया करता था। तो अगर हम यहाँ पे ओमेगा एस और ओमेगा पी के बीच में डिफरेंस को कम से कम रखेंगे तो ये चीज अटेन होगी, वरना ये चीज अटेन नहीं होगी। वरना देयर विल बी सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशंस, जिसके बाद आपकी जो स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी है वो पास बैंड फ्रीक्वेंसी में जाएगी। ओके यस ठीक है। अच्छा Yes, sir. तो हम जो फिल्टर जी जी तो सर ये ओमेगा पी और ओमेगा एस के दरमियान जो ये फॉल टाइम होगा इसके दौरान हमारा सिग्नल कैसा होगा? इसके दौरान आपका सिग्नल आपके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच में कहीं होगा। वो कहीं भी हो सकता है? कहीं भी, हाँ इनके बीच में ही हो। मैंने कहा ना 1 माइनस एप्सिलॉन और सिग्मा के बीच में कोई वैल्यू होगी उसके एम्पलीट्यूड की उस वक्त। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो एकदम 1 माइनस एप्सिलॉन से सिग्मा तक पहुंच जाए। ओके क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन 1 के करीब है अगर एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी है, और सिग्मा 0 के करीब है अगर सिग्मा की वैल्यू छोटी है। ओके जी ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ड्यूरेशन जितनी कम रखेंगे उतनी ही जल्दी आपका सिग्नल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मिनिमम एम्पलीट्यूड तक आ जाएगा। अगर आप ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे तो आप अपने सिग्नल को फिल्टर को फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने सिग्नल को कोई भी इंटरमीडिएट एम्पलीट्यूड दे दे इस ड्यूरेशन में, जो कि हम नहीं चाहते। ओके ठीक है, थैंक यू। तो
वापस कमिंग बैक टू दैट, प्लीज गेट योरसेल्फ अकस्टम्ड के ओमेगा पी क्या है, ये किस चीज को शो करता है। ओमेगा पी उस फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है जिससे पीछे पीछे आपका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 के आसपास मैग्नीट्यूड से ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, अगर आपका एप्सिलॉन बहुत छोटा तो ठीक है। ओमेगा एस आपके पास वो स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो है आप वो अटेन्यूएट करेंगे, उन्हें मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, टू ऑलमोस्ट बीइंग इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो अगर सिग्मा बहुत छोटा तो। ओके, ओमेगा सी, ओमेगा पी और ओमेगा एस के बिल्कुल बीच में कहीं है, ठीक है। उसके बाद जो एप्सिलॉन है वो बेसिकली वो थोड़ा सा मार्जिन है जो आपने 1 के आसपास एम्पलीट्यूड में दिया हुआ है, और सिग्मा वो छोटी सी वैल्यू है जो आपने सिग्नल को मार्जिन दिया है कि वो 0 के आसपास कितना फ्लक्चुएट कर ले। ये चारों पैरामीटर क्लियर हैं आप सबको? अब यस सर। यस सर। क्योंकि जब हम फिल्टर डिजाइन करेंगे तो हमारी जान ये एप्सिलॉन, सिग्मा, ओमेगा पी, ओमेगा एस, ओमेगा सी से नहीं बच पाएगी, ठीक है। यस सर। ओके, चलें फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू डिजाइन अ फिल्टर वी फॉलो 2 स्टेप्स, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बाय रैशनल ट्रांसफर फंक्शन दैट इज कॉजल एंड स्टेबल। ओके, और दूसरा जो स्टेप होगा रियलाइजेशन ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन बाय अ फिजिकल सिस्टम। ओके, सो whenever we design a filter, basically हमसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है जब हम फिल्टर डिजाइन करते हैं, we are expected to design a frequency transfer function और impulse response of that filter। ओके, ठीक है, और वो पर्टिकुलर फिल्टर जो होगा उसमें ओमेगा एस, ओमेगा पी, एप्सिलॉन, सिग्मा, इन सब की वैल्यूज हमें दी गई होंगी। ओके, मतलब अगर किसी हॉस्पिटल वाले ने हमें कहा है कि प्लीज मेरी ईसीजी के लिए एक ऐसा फिल्टर डिजाइन कर दो जो इस फ्रीक्वेंसी को पास कर दे, इस फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर दे, ठीक है, इतना उसका एप्सिलॉन का मार्जिन हो, इतना उसका सिग्मा का मार्जिन हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप अपने फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करेंगे, मतलब एच ऑफ टी की फॉर्म में अगर आप टाइम डोमेन में हैं, या एच ऑफ जे ओमेगा की फॉर्म में अगर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, हाँ, 2 Yes, sir. कंडीशन जरूर होंगी आपके ट्रांसफर फंक्शन में, एक तो वो कॉजल भी होना चाहिए, दूसरा वो स्टेबल भी होना चाहिए। कॉजैलिटी का आपको पता है, स्टेबिलिटी का भी आपको पता है। ओके, क्या होती है, कोई बंदा रिपीट कर सकता है इनको? कॉजैलिटी होती है जो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो। हाँ, कॉजैलिटी होती है कि आपका सिस्टम जो है उसमें लेफ्ट हैंडेड पार्ट ना हो 0 से। ओके, तो इसके लिए आप जो भी अपना ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे उसमें 0 से लेफ्ट कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमने आइडियल लो पास फिल्टर बनाया था जो कि ये स्लाइड में शो भी हो रहा है आपके पास, ये कॉजल है कि नहीं? नहीं है सर। कॉजल नहीं। कॉजल नहीं है क्योंकि इसमें 0 से इस तरह भी कुछ चीज है। ओके, इसे कॉजल करने के लिए क्या क्या कर सकता हूं मैं? तो वो मल्टीप्लाई करते हैं सर यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ। यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, तो फिर ये सिंक नहीं बचेगा, ऐसा ही है ना? ले लें। सिंक की सर। शेप चेंज हो जाएगी। तो इसमें डिले ले आए उस तरफ चला जाएगा। एग्जैक्टली, इसमें डिले ले आए, इसे 0 से राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो फिर ये कुछ कॉजल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो सिंक है ना ये कभी 0 भी नहीं होता, अब ये भी अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसे मैं उठा के राइट साइड पे जितना मर्जी ले जाऊं, बेशक विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड 0 के आसपास जरूर पहुंच रहा है, लेकिन वो हमेशा 0 से थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे वेरी करता रहेगा। इसका मतलब है कि जब मैं इसे बहुत ज्यादा शिफ्ट दे दूंगा राइट साइड पे तो इसका काफी सारा पोर्शन कॉजल हो जाएगा, लेकिन कुछ एक थोड़ा सा पोर्शन अभी भी नॉन कॉजल रहेगा। एग्री? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, Yes. वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लॉस होगी। थ्योरेटिकली आपको चीज अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि सिंक कभी भी 0 नहीं होता। ओके, यस सर। ठीक है, और कॉजल करने के लिए क्या करेंगे कि इसे डिले दे देंगे ऐसा जिसकी वजह से ये राइट साइड पे मूव कर जाए काफी ज्यादा। चलें, आपको कॉजैलिटी का पता चल गया। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या थी? हेलो बच्चों। यस सर। जी, मैं Yes, पूछ sir. रहा हूँ स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या थी? कॉजैलिटी की कंडीशन तो आपने मुझे बता दी कि कॉजैलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है?
सर बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट हो। एग्जैक्टली कि आपका जो ट्रांसफर फंक्शन की आपने जो एक्सप्रेशन बनाई है एच ऑफ टी की अपने इस फिल्टर के लिए, उसको सम करें तो वो इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको अगर इंटीग्रेट करें आप ड्यूरेशन पे तो कोई फाइनाइट नंबर आपके पास आना चाहिए। इससे ना चेक करते थे ना स्टेबिलिटी को, राइट? यस सर। ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो आप ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे अपने फिल्टर के लिए एच ऑफ टी, ठीक है। एक उसको कॉजल होना चाहिए, उसमें जीरो से लेफ्ट साइड पे कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसको स्टेबल होना चाहिए। इसका ना जो आपका एच ऑफ टी है उसे एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसे इंटीग्रेट करके कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इंटीग्रेशन का रिजल्ट इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ओके। अच्छा, एज्यूम के एक वंस आपने you have like probably come up with a causal and stable transfer function of your prescribed frequency response low pass filter, ठीक है। आपने लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन कर लिया है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज दैट ट्रांसफर फंक्शन बाय अ फिजिकल सिस्टम, ओके। एंड जिस हॉस्पिटल के पर्सनल ने आपसे वो फिल्टर डिजाइन करने को कहा है, उसे आपसे ट्रांसफर फंक्शन नहीं चाहिए पेपर पे, ओके। उसे आपसे पीसीबी की फॉर्म में वो फिल्टर चाहिए जिसे वो अपनी ईसीजी मशीन में लगा सके, ओके। जब आप एक बार ट्रांसफर फंक्शन बना लेते हैं, फिर आप उस ट्रांसफर फंक्शन को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप पीसीबी पे कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, डिले एलिमेंट्स या मतलब आईसीज लगा के अपने उस फिल्टर को इंप्लीमेंट करते हैं, ओके। फिर अल्टीमेटली वो फिल्टर बनता है जो बेसिकली आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर लगा होता है, ओके। और इस काम को दो तरह से किया जा सकता है, तीन तरह से। पहली है एनालॉग अप्रोच कि आप अपने फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन बनाएं एनालॉग डोमेन में जो कि लैप्लास डोमेन है, ठीक है। और फिर एनालॉग डोमेन में ही उसको फिजिकली रियलाइज करके अपने हॉस्पिटल वाले बंदे को दे दें, ठीक है। दूसरी अप्रोच जो कि अब इजी और थोड़ी सी आसान है कि आपने अपने फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन एनालॉग डोमेन में डिजाइन किया है यानी कि लैप्लास डोमेन में, उसके बाद आपने उसे डिजिटल डोमेन में कन्वर्ट कर दिया जो कि जी डोमेन है, ठीक है। और डिजिटल डोमेन में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि हम डिले एलिमेंट्स लगा के किसी भी फिल्टर को रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास जो मुश्किल सा ट्रांसफर फंक्शन आएगा एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, उसका जब आप जी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि जी डोमेन में इफेक्टिवली जो चीज चल रही होती है वो जी इनवर्स ही होता है जिससे हर चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, ओके। जी इनवर्स को एक दफा और जी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी रेज़ टू -2 बन जाएगा जो कि शो करता है कि आपके पास दो दफा डिले आ गया है। एक दफा जी इनवर्स का मतलब है कि आपके पास एक डिले है, अगर कोई जी इनवर्स नहीं है तो इसका मतलब कोई डिले नहीं है, ठीक है। तो हम ये डिले एलिमेंट्स लगा के अपने एनालॉग अप्रोच से डिजिटल फिल्टर बना सकते हैं जो कि इजी टू मैन्युफैक्चर है, ठीक है। और लास्ट अप्रोच क्या होगी कि हम अपने फिल्टर को डिजाइन भी डिजिटल डोमेन में करें रादर देन कि हम लैप्लास डोमेन में फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन बनाएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसका ट्रांसफर फंक्शन भी जी डोमेन में बनाएं और फिर हमें उससे फिजिकली रियलाइज करना आसान होगा क्योंकि हमें सिर्फ डिले एलिमेंट्स लगाने होंगे, ठीक है। किसी के पास क्वेश्चन तो नहीं इसको लेके अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, अब ये काम हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आपने अगर मुझसे अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपकी जरा अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। जी बेटा। सर वो आप सर वो जो लास्ट लेक्चर थे वो अपलोड नहीं हुए यूट्यूब पे। यस सर जी लास्ट वाले मैं कर रहा हूँ, लास्ट वाला अपलोड हो गया, ये वाला भी अपलोड हो जाएगा, जो पहले वाले 2-3 है उन्हें भी मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, ओके। जी सर, थैंक यू। कोई क्वेश्चन पूछा था मुझे इसको लेके? सर एनालॉग अप्रोच का पूछा था। हाँ, एनालॉग अप्रोच बेसिकली कंटिन्यूअस अप्रोच, ओके। हमें पता है कि जो हमने लैप्लास ट्रांसफर वो लैप्लास पढ़ा था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जी सर। ओके, ठीक है। मैंने आपको तब भी बताया था कि बेसिकली जो लैप्लास है एच ऑफ एस जो है ये कंटिन्यूअस है, ओके, फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, मतलब सिग्मा प्लस जे ओमेगा में, ओके। कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हम कंप्यूटर्स पे या अपने डिजिटल सिस्टम्स में, ओके। इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैड टू मेक अ डिजिटल वर्जन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो कि जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। जी ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिवली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ही डिजिटल वर्जन है, ओके, ठीक है। तो हम जब ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करेंगे किसी फिल्टर का तो हम उसे एच ऑफ जी की फॉर्म में भी डिजाइन कर सकते हैं और एच ऑफ एस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ओके। एच ऑफ एस की फॉर्म में करेंगे तो उस तरह का फंक्शन बनेगा एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर ओवर एस प्लस 1, ओके। एच ऑफ जी की फॉर्म में करेंगे तो बनेगा 2 प्लस जेड इनवर्स प्लस 3 जेड रेज़ टू पावर माइनस 2 ओवर 2 प्लस जी समथिंग समथिंग, ओके। इन दोनों ट्रांसफर फंक्शन, जो एच ऑफ एस वाला ट्रांसफर फंक्शन है ये एनालॉग है और एच ऑफ जी वाला ट्रांसफर फंक्शन ये डिजिटल है, ओके। आपके फिल्टर दोनों में डिजाइन हो सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, ओके। हम ये काम करेंगे, ओके। मतलब अब नेक्स्ट फ्यू डेज में आप देखेंगे, नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में, कि हम फिल्टर को डिजाइन करेंगे लैप्लास डोमेन में और फिर बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उससे एचओजी में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब एचओजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद उसको फिर फिजिकली रियलाइज करना मुश्किल नहीं रहेगा हमारे लिए।
यस सर ठीक। किसी और के पास कोई क्वेश्चन हो? सर जी बेटा। सर ये जो हमने आइडियल लो पास फिल्टर बनाया था, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने सिंक फंक्शन, मतलब जो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आता है वो सिंक फंक्शन आता है, तो ठीक ये है। इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है कि सिंक फंक्शन मतलब कि क्या सिग्निफिकेंस क्या है सिंक फंक्शन की? अच्छा, आसान सा क्वेश्चन है, मैंने वो स्लाइड खोल भी दी आपके सामने। स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? नो सर। नहीं शो हो रही, मैंने तो यहाँ शो कर दी है। किसी को भी नहीं शो हो रही स्लाइड? हो रही है सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहली वाली एक्सप्रेशन है h ऑफ j ओमेगा व्हिच इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा t नॉट एज लॉन्ग एज ओमेगा मॉड इज लेस देन ओमेगा c, ऐसा ही है, और जीरो अदरवाइज। ओके, आसान बात है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, मैंने इस h ऑफ j ओमेगा से h ऑफ t बनाना है। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए क्या करते हैं हम? इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म के लिए सर हम उसके e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा t नॉट को e रेज़ टू पावर j ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस j ओमेगा से, और d ओमेगा पे उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आसान बात, ठीक है। ठीक है। बेसिकली ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ना, अगर आप इसको ऐसे लिख लें 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनी है ना इंटीग्रल फॉर्म में, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली सिंक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ओके। मैथमेटिकली इसी से डिराइव हुआ है। आप कहते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसकी वो कैलकुलेशन दे दूंगा, ये बहुत मुश्किल नहीं, आसान है। नहीं सर वो कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन सिंक फंक्शन की सिग्निफिकेंस मैं पूछ रहा था कि इसकी को मींस एक रिस्पांस आया है, हमने मतलब डिजाइन किया है फिल्टर हमने जो के रिस्पांस दे रहे हैं सिंक फंक्शन का, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिकली जो रिस्पॉन्स बना है वो साइन पाई एक्स ओवर पाई एक्स की फॉर्म में बना है। ओके, आपका दिल करे तो आप साइन पाई एक्स ओवर पाई एक्स को भी प्लॉट कर सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यूज पुट करके, ठीक है। वो जो प्लॉट बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। हमने सिर्फ साइन पाई एक्स ओवर पाई एक्स को एक और फंक्शन का नाम दे दिया जिसको हमने सिंक का नाम दे दिया। ओके, और सिंक फंक्शन की एक अपनी पर्टिकुलर वो प्रोफाइल है। ओके, एक तो ये कि उसका मेन लोब बड़ा होता है, ठीक है, जिस तरह के हम यहाँ पे देख रहे हैं। साइन के केस में ऐसा नहीं होता, साइन के केस में सारे लोब एक ही जितने होते हैं। ओके, यस सर। ठीक है। एक तो इसमें मेन लोब आपका बड़ा होगा, ठीक है, और दूसरा इसमें अच्छी बात ये है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके होता जाएगा। ओके, आपका साइन फंक्शन कभी डिके नहीं होता। जी। ओके, ठीक है। इस डिके होने की वजह से ही हमें वो फायदा मिला जो भी हम कुछ देर पहले बहस कर रहे थे कि अगर हम इसको कॉजल करने के लिए राइट साइड पे शिफ्ट कर दें बहुत ज्यादा, तो अल्टीमेटली बहुत ही कुछ छोटा पोर्शन होगा जो लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा, बाकी सारी चीजें राइट साइड पे ही आ रही होंगी। तो वो इतना छोटा पोर्शन होगा कि उसे डिस्कार्ड भी कर दें तो भी हमारा गुजारा हो जाएगा। तो ये सिंक करने की वजह से फायदा हुआ है कि अब इसे लेफ्ट राइट शिफ्ट करें तो इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी ज्यादा, साइन के साथ वो पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब है सर कि हमने अपना डाटा सेव करने के लिए हमने इसको सिंक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट की, मतलब इसका रिस्पांस रखा है। बेसिकली मैथमेटिकली वो सिंक फंक्शन ही बना है। ये हमारी मतलब सॉर्ट ऑफ किस्मत अच्छी है कि वो सिंक बन गया। अगर वो कॉस बनता है तो डाटा सेव ना होता, मतलब वो कॉजल ना होता फिर कभी भी, राइट। मतलब कॉस फंक्शन को जितना मर्जी लेफ्ट राइट शिफ्ट करते जाएं आप, उसने हमेशा जीरो से ऊपर भी बन जाना है, जीरो से नीचे भी बन जाना है। ओके, तो उसमें ये जो नॉन कॉजल पार्ट से हमारी जान ना छूटती, इस केस में वो छूट जाएगी हमारी अगर हम बहुत ज्यादा डिले देंगे तो हमने खुद जानबूझ के सिंक नहीं बनाया, मैथमेटिकली सिंक बनाया वो। ओके, थैंक यू। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? चलें, इसका किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर जरा अटेंडेंस कर लूं डाउनलोड। ठीक है गाइस, देन वी विल मीट अगेन ऑन मंडे एट 1300 आवर्स। ओके, 1400 आवर्स। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो हमने सुना है कि 15 जुलाई से यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, ये न्यूज़ ठीक है या नहीं? बेटा कहाँ से सुना आपने? अब्दुल रहमान ने सेंड किया।
तो अब्दुर्रहमान से फिर वेरीफाई भी कर लें बेटा, ये जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट ने लेने, ओके। मुझ गरीब के हाथ में नहीं है कि मैंने यूनिवर्सिटी को कब खोलना है कब नहीं खोलना। यूनिवर्सिटी कहेगी हम यूनिवर्सिटी खोल दें, हम यूनिवर्सिटी आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट बंद रखेगी, हम बंद करके बैठे रहेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है, मुझे नहीं पता ये किसने शेयर किया है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो मैं आपके सीआर को कन्वे कर दूंगा, ओके। बाकी सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान मत दें आप। ठीक है गाइस, then we'll see each other again on Monday. Okay, bye bye. Yes, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, sir, Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़।